Welcome back, Biskiners, to our segment called Quarantine Made. Today is Saturday, a weekend day. Thank you so much for joining us. I hope things are getting better and a routine is getting better as your quarantine days are passing by. We hope you get better results during this lockdown and be more productive during this time. Do share with us your ideas. But today, on this Saturday night in our segment Quarantine May, we have someone who is known to the Indian television and film fraternity for years. Yes, she is celebrated as the most popular villain or even in comic roles. She's been across television and won many awards. Not only she's an actor, you would have seen her in the movies called Beta, Gumrah, Khiladi. If you'll tie these up, you'll see a common face and the one that you always remember. Hum Saath Saath Hain. She's even a social activist. She is working with NGOs and lots more. We should not wait anymore and we should call through our guest. You've guessed it right, Kunika Sadanand. Here we are. A very warm welcome, Kunika ji. How are you doing? I'm doing very well. How are you? We are doing good. It is such an honor to have you on our channel. आप बताइए क्वारंटाइन में आपका हाल कैसा चल रहा है? Thank you for inviting me. I thought it was very exciting from the day you called me and said that you'd like to do this. So मेरा क्वारंटाइन में वही जैसे सब हर एक माँ का जैसे घर में चलता है, जैसे आपका है होता होगा. तो काम और घर के अपने बच्चों का देखभाल, मतलब मेरे साथ मेरा एक बेटा है, दूसरा तो दिल्ली में है, और घर का देखभाल, फिर खाना पकाना, and of course because we are working women we also have other responsibilities. So for me it's my NGO, my other work of course is not happening, but as shooting भी नहीं हो रही है, लेकिन मेरे NGO का खास काम हो रहा है. और मैंने ना इस वक्त अपने आप को थोड़ा सा वेबिनार्स काफी सारा अटेंड कर रही हूँ, ताकि वो मुझे हेल्प करे मेरे आगे के काम में, चाहे वो NGO का काम हो चाहे दूसरा कोई भी काम हो. बिकॉज मैं बता रही हूँ आपको, लाइफ बहुत चेंज होने वाली है. आप जो पहले कर रहे थे, जिस हिसाब से जिस तरह से कर रहे थे, वो शायद वैसे नहीं रहने वाला. एब्सोल्युटली अ वेरी डिफरेंट टाइम. बहुत ही नया दौर है ये. कोरोना की मारामारी में जितना डर लग रहा है उतना हौसला भी आ रहा है कुछ नया करने का, क्योंकि वक्त हमारे साथ आया है पहली बार जिंदगी में हम कुछ नया कर सकते हैं. Talking about doing new things, we have come to know कि आपने LLB की है and you're pursuing LLM. I mean, a big congratulations. Please tell us about it. Thank you so much. I'll reply to this question. लेकिन मुझे आपकी एक बात, I picked up on one word that you said, that we are living in fear. Fear तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए. हाँ, fear of the unknown हो सकता है, लेकिन जैसे मैं कल ही सोच रही थी कि देखो, मैंने अपनी जिंदगी में, और आपने भी शायद, आप मुझसे छोटी हैं शायद, लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को जाते हुए देखा, कंप्यूटर्स को आते हुए देखा, कंप्यूटर्स का लैंग्वेज जो था, मतलब राइटिंग द कंप्यूटर लैंग्वेज, जो मैंने जब कंप्यूटर्स आए थे तब हमने सीखा था, तब एकदम अलग हो गया. अब उसके एल्गोरिदम्स, उसकी लैंग्वेज सब चेंज हो गई. फिर अब हम देखिए डिजिटल में, आप मेलबर्न में बैठी हैं, मैं मुंबई में बैठी हूँ, और पता नहीं हमारे साथ इंस्टाग्राम में कितने लोग जुड़े होंगे जो सब मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो देख रहे हैं. सो दिस इज अमेजिंग. What I want to say is, fear is definitely not something that we should let it creep up. It comes, वो आएगा, but actually मैं तो सोचूंगी what possibilities. देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से लेके आज हम कलर टीवी पे, अब डिजिटल मीडिया देखिए कैसे कहाँ से कहाँ डिजिटल हो गया है. So it could be so many new possibilities. It's amazing. In fact हमारे जो NGO है, हम लोग स्कूल्स में पढ़ाते हैं. हमारा इंटरवेंशन स्कूल्स में होता है. अब स्कूल्स तो खुलेंगे नहीं. So now we are thinking of new ways of teaching children, and इतना मजा आ रहा है क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं, they are interacting बच्चों, और हमारे जो बच्चे हैं वो माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चे होते हैं, या तो रिक्शा ड्राइवर, माइग्रेंट वर्कर्स, या लेबर्स. तो दे स्टडिंग इन द म्यूनिसिपल स्कूल्स. तो अब कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन, अब जियो के वजह से थैंक्स टू दैट लोगों के पास इंटरनेट भी है. So they're sending, videos of teaching the children, and children are loving it. They're enjoying it, and even साथ में माँ बाप का भी एजुकेशन हो रहा है. So look at the new possibilities. अब रहा सवाल आपका LLB वाला. And LLB क्यों किया? तो शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि जितनी 32 साल मेरी जो फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी है, वैसे ही 32 साल की मेरी सोशल वर्क की जर्नी है. और सोशल वर्क करते करते मैंने रियलाइज किया कि
कहीं ना कहीं आप उतना ही फर्क पैदा कर सकते हैं जितना आपके पास पावर हो। तो मैंने रियलाइज किया कि मुझे अगर और मेरे पास पावर आएगा एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या बीइंग पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, आई कैन प्रॉब्ली डू अ लॉट। तो ऐसे करके मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो आई वाज अ कंप्लीट मिसफिट। और रोज घर आके सोचते, हे भगवान मैंने क्या कर लिया, ये कैसे लोग हैं, कैसे बिहेव करते हैं। एंड उसके बाद मेरे फादर ने भी मुझे कहा कि तुम क्यों इसमें पड़ी इस दल। माय फादर वाज एन एयरफोर्स ऑफिसर एंड ही सेड हाउ वी ऑल यूज्ड टू लुक एट पॉलिटिक्स, ये भाई गंदे लोग होते हैं। सो खैर मैंने तो डैड को ये समझाया कि सब लोग गंदे नहीं होते पॉलिटिक्स में, एंड पॉलिटिक्स इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर एवरीडे लिविंग। इवन द प्राइस ऑफ अनियन डिपेंड्स ऑन पॉलिटिक्स, so we must all be involved in it. So then I decided, I got out of politics, and before I got out of politics, I enrolled myself in this LLB. At first I had to finish my 12th again because I couldn't find my 12th standard certificate. तो मैंने 10 की 12वीं की सर्टिफिकेट, मेरे पास कुछ नहीं था बिकॉज मेरी जिंदगी में हालात ऐसे थे कि जब मैं अपने पहले ससुराल से निकली थी तो मेरे सारे सर्टिफिकेट्स वहीं रह गए थे। तो फिर उसको बाद में वो मिले नहीं, तो मैंने लिखा CBSE बोर्ड को, लिखा, बोले हमारे पास नहीं है। फिर मैं अजमेर गई तो वहां से सर्टिफिकेट निकला, उसकी भी बड़ी एक मतलब एक अमेजिंग कहानी है। इफ यू हैव टाइम आई विल टेल यू द स्टोरी। कैन आई शेयर विद यू? सो आई वांटेड टू स्टडी फर्दर बट आई हैड टू हैव माय ओल्ड डिग्रीज, आई मीन माय ओल्ड सर्टिफिकेट्स। तो वो मुझे मेरे पास नहीं थे, ना मेरे एक्स हस्बैंड के पास थे। तो मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने 2 साल तो चिट्ठी लिखती रही CBSE को कि प्लीज मुझे भेजिए। फाइनली मैंने एक दिन डिसाइड किया, मेरी नीस जो है वो अजमेर में पढ़ती थी, मेयो गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स स्कूल में। तो मैंने कहा चलो उससे भी मिलना हो जाएगा, क्योंकि CBSE का जो मेन हब जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं वो अजमेर में है। तो मैं वहां गई, उस बच्ची से भी मिली और फिर मैं CBSE के ऑफिस गई। वहां पता चला कि जो सारे पोथे थे ना 30 साल पहले, वो सब कंप्यूटराइज कर रहे थे। तो बोले मैडम बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरी खुशकिस्मती, जो वहां का हेड था वो मेरा मतलब हमारे क्या बोलते हैं इसको, फैन नहीं बोलना चाहिए, ही इज अ वेरी सीनियर ऑफिसर, बट ही वाज मतलब प्रशंसक थे हमारे। उन्हें नहीं कहा मैडम हम ढूंढ देंगे। मैं वापस गई अगले दिन, उन्होंने वो पोथे निकाले और उसमें से 10वीं का निकला। तो 10वीं का तो नहीं, सॉरी 12वीं का निकला। 12वीं के सर्टिफिकेट तो सारे चूहों ने कतर दिए, तो मेरा तो मिला नहीं। उसके बाद 10वीं वाले निकाले तो आप मानेंगे नहीं, 10-12 बचे हुए थे जो चूहों ने नहीं कतरे थे, उसमें से एक मेरा था। अच्छा, तब मैंने रियलाइज किया कि भगवान चाहते हैं कि मैं पढ़ूं और मैं कुछ लोगों की मदद करूं। और तब वहां से मैंने 12वीं में फिर से दी, 10वीं का सर्टिफिकेट सबमिट किया, ओपन यूनिवर्सिटी से 12वीं किया। उसके बाद फिर लॉ ज्वाइन किया और अब मैं LLM कर रही हूँ। LLM में लॉ की डिग्री मुझे 2018 में मिल गई थी। मैं मेंबर ऑफ इंडियन बार काउंसिल हूँ। LLM मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स में, आई वांटेड टू स्पेशलाइज इन ह्यूमन राइट्स। ऑल्सो आई वांटेड टू बिकम एन इंटर्न, किसी के साथ मैं इंटर्नशिप करना चाहिए, लेकिन मुझे उस वक्त इमीडिएटली इंटर्नशिप नहीं मिला। तो मैंने कहा इससे पहले कि मेरा मोमेंटम खत्म हो जाए तो लेट मी एनरोल फॉर LLM, एंड सो दैट्स हाउ आई डिड माय LLM। See, as you said, आपको एक पावर की जरूरत है, पावर ऑफ एजुकेशन। इट्स गोइंग विद यू, एंड द कायनात थी साथ में, आपकी डिग्री बची हुई थी 10th स्टैंडर्ड की एंड 12th की, और आप आगे बढ़। It was we thank you from the community because every step that you're taking and making us join hands in different ways, it is making a difference. Thank you so much. Thank you. Kanika ji, we know that you are a trustee of an NGO called CHIP, which is Children in Progress. Now, there is an interruption in education because of Corona, how things have come. There are lockdown across, countries. What do you think there is going to be an impact on education? So it's going to definitely change. The pedagogies are going to change. The system of education is going to change. And because we cater to the free education, not the the privileged education, so the free education for the underserved people. So there are limitations there also. Like you cannot expect them to buy lots of books and lots of things, So there will be limitations to that. There will be limitations on their internet facility if we want to do digital learning for them or e-learning for them. So systems are going to change. We are still wrapping our head around it, and we are trying to figure out how we are going to send worksheets home. Worksheet घर पे भेजेंगे तो वो माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं होते. How will they instruct the children? So it's definitely going to change. I feel for some time, especially if like 1st to 4th standard जो बच्चे हैं,
I don't think we should even insist कि वो school जाएं or get them endanger their health and whatever. And I think there will be more. I think interaction और बढ़ेगा because teachers will be talking to the students on their phone. They'll be sending videos. The students will be sending videos, or they'll be sending paintings, or something. But yes, it will be a little tough. ऐसा नहीं कि it's going to be very easy transition. It's not going to be easy. Absolutely. I think सब लोग एक नई सिचुएशन के लिए जितना रेडी नहीं है बट उतना ही एक्साइटेड है कि जो आने वाला है देख लेते हैं कैसे करेंगे. ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आई थी sometime in March where you traveled between two different states or cities, and obviously the government had to take you over for the COVID test. वो experience बताइए as a common man or per se even as an artist, how did you feel about that episode? So जब मैं वहां अंदर गई उस होटल में, मुझे लॉज में रखा गया और मैंने सिचुएशन देखा तो मैं समझ गई कि क्यों लोग डर रहे हैं जब क्वारंटीन के लिए लोग उनको लेने आते हैं. तो बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ हॉरर स्टोरीज, बट फॉर मी फॉर्चुनेटली एंड फॉर अदर 6 people, नॉट बिकॉज आई एम सेलिब्रिटी, मेरे साथ और भी जो 6 लोग थे वो भी मेरे साथ ही उसी लॉज में थे. कुछ 2-4 लोग दे वर फ्रॉम द स्लम एरिया, 2 लोग वहां से थे. कुछ हमारे मतलब स्पॉट बॉयज थे. एक तो हमारा स्पॉट बॉय था फिल्म इंडस्ट्री का, जो जिसको मैं कभी मिली नहीं थी लेकिन वहां मिल गई. There was another rich industrialist also with me, who was also in the same lodge. So I mean entrepreneur he was. And so ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि जब मुझे फोन आया कि आप दिल्ली गई थी, तो मैं थोड़ी सी सरप्राइज थी. मैंने कहा ये क्या CID लगा रखा है मेरे पीछे. बोले हाँ मैं गई थी लेकिन मुझे 20 दिन हो गए आके. बोले नहीं मैडम आप मरकज गई थी. नहीं, मैंने कहा मैं मरकज नहीं गई भाई, लेकिन मैं दिल्ली गई थी. ठीक है मैडम, आपको पुलिस स्टेशन से फोन आएगा, आप प्लीज कोऑपरेट करना. पुलिस स्टेशन से फोन नहीं आया. रात को 12:30 बजे एक पुलिस वाले मेरे घर पे आ गए. मैं सो रही थी, मेरे बेटे ने दरवाजा खोला तो बोले मैडम यहीं पे है ना, कहीं बाहर नहीं. बोले मम्मी तो यहीं पे है, सो रही है. तो बोला ठीक है आप बता देना कि मैं तो इरिटेट हो गई. मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस स्टेशन में बोला मैंने क्या तरीका है, 12:30 बजे आप घर पे आते हैं, किसी की पुलिस आती है, तो आपको पता है ना हम लोग का सिस्टम, हम लोग क्या सोचते हैं. बोले नहीं मैडम हम यूनिफॉर्म में नहीं आए थे, हम पेंट क्लोथ में आए थे, हमको पता करा था कि आप हैं कि नहीं. सो दे एक्चुअली वेरीफाई बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल दे रन अवे, व्हेन द BMC कॉल दे रन अवे. सो ऐसे नहीं आई एम देयर टू कोऑपरेट विद यू, प्लीज टेल मी. तो देन बोले कि अच्छा कल डॉक्टर लोग आएंगे, थोड़ा उनके साथ कोऑपरेट करना. नेक्स्ट डे डॉक्टर क्या 15 लोग आ गए. मेरी सोसाइटी के वॉचमैन वगैरह इतना डर गए थे बिकॉज दे सेड देयर वर 2 cars. So when I came back, they said, "Madam, हम तो इतना घबरा गए. There were 2. There was a big van, there was a bus, and there was police गाड़ी and BMC. सब आपके पास, सब ऊपर आना चाहते. फिर हमने रोका. हमने कहा नहीं आप लोग सब तो 15 लोग तो ऊपर आए. तो मैंने कहा देखो बड़े लोगों को लाने के लिए बहुत बड़ी काफिले की जरूरत होती है. बट सो देन वहां से हमको बोला गया कि 15 मिनट आपको हम टेस्ट करके वापस भेज देंगे. मैं कुछ सवाल पूछे थे. मेरा बेटा बोला मम्मा why you asking so many questions? I said, I know because nothing is sorted in there. They don't know what to do. They don't know, and I know because I've heard from other people. खैर मैं गई as I expected. 15 मिनट नहीं. उन्होंने मुझे बोला ये होटल ठीक है आपके लिए. मैंने कहा देखो 15 मिनट की बात है, चलो 2 घंटा मैं आपको देती हूँ. अब 2 घंटे में मुझे भेज देंगे. Luckily for me, I don't know what struck me. I took some books, I took my charger, I took एक जोड़ा कपड़ा, and नहाने के लिए साबुन वाबुन. मैं पता नहीं क्योंकि मैं थोड़े से फिनिकी हो ज्यादा सफाई के बारे में. तो खैर वहां पहुंचे तो द लॉज पीपल वर वेरी नाइस. इट वाज वेरी क्लीन. बट द स्कैरी पार्ट वाज कि पूरा लॉज जो है वो 3 फ्लोर्स पे था. तो 3 फ्लोर्स पे नीचे कुछ दुकानें थी, ऊपर कमरे थे, उसके ऊपर ऊपर रिसेप्शन था, उसके ऊपर कमरे का सेक्शन था. और वो पूरा जो ब्लॉक था ना उसको वो लोग ने लोहे का जो शटर लगा के लॉक रखा. और रिसेप्शन पे भी कोई नहीं. अगर आग लग गई तो मैं कहा कैसे तो खैर शाम तक तो मेरा गुस्सा चढ़ गया था बिकॉज फिर मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया, वार्ड ऑफिसर को, कमिश्नर को फोन किया. सब नेक्स्ट डे हमारा टेस्ट हुआ, सब कुछ हो गया. लेकिन क्लैरिटी अगर होती तो हम लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता. लेकिन अगर आप 100% क्लैरिटी भी देंगे ना लोगों को, तो कुछ लोग हैं जो ना समझ हैं, वो 100% clarity को शायद they will not be able to digest. So that is also an issue. So actually the BMC and the police had a tough time. The healthcare workers, everybody is having a tough time even now.
Absolutely, and I think like उनके लिए भी ये नई चीज है to keep it calm and composed and still do their duty within the time. But as long as you felt as a very assured citizen, that's what they're aiming to do. So let's join It together was a for. small room. If I walked 10 steps, I would reach the end of the room. And luckily there was a TV. Others I would have gone crazy. But मुझे पता है सबसे पहले क्या ख्याल आया जब मैं वहां थी. मेरा बेटा बहुत परेशान, मम्मा आई यू ओके, मेरे बच्चे बार बार फोन कर रहे थे, मेरी फैमिली फोन कर. मैंने सबसे पहले सोचा यार ये तो मैं पता नहीं 1-2 दिन हो सकता है अगर मैं पॉजिटिव निकलूं तो 14 दिन. थिंक अबाउट कश्मीरीज, Hmm. think about them, what they went through. And then I started thinking about the other people who are lesser privileged than me. Think about people living in the slums who don't have an air conditioning, who don't have a TV, and living, and so many more people in one room. And that's what actually gave me strength. And I said, no behaving like a privileged person. You have to cooperate with the authorities. You have to cooperate. This is for the country. This is for other people. This is for your own family. ये सोच के मैंने एकदम शांति से वहां गुजारा. Actually, it was very spiritual for me. Okay. I think that's a very noble message to take the time when it comes. As much as you feel distressed, आप उसे एकदम positive way में and spiritual way में भी ले सकते हो because it's your own time eventually and can be Exactly. undisturbed for And long. I'm a claustrophobic person. हाँ, मैं लिफ्ट में भी जाती हूँ तो डरती हूँ. छोटे कमरे में मुझे सारे खिड़की खुले चाहिए, सब पर्दे खुले चाहिए. तो it was like I could just, one window was there. मैं वो विंडो का जो शटर है ना वो बंद नहीं किया, मैंने खुला रखा उसको because I felt I can see something. It's like that. I think your time tested you completely, didn't it? I think अभी तो और भी शायद टेस्ट होंगे, लेकिन अब ये भी मुश्किल टेस्ट है, ये लॉकडाउन और सबके लिए. I think. And I think I'll give a very big salute to all our, civilians and even our civil bodies like police, doctors, or even for that matter, security guards. I think they are taking care of 1.3 billion people. I'm in Melbourne. I'm in Australia. It's not a big population like that, but to know and from first hand, even from you as your experience, I feel very proud. For a country like India to be taking care of its citizens. So, You and know, thank you for you participating in that. no, thank you so much. I'm so proud of the plasma donors who are coming up and giving their plasma for to help the COVID patients. I want to tell you that there was an initial stage where everybody is blaming तबलीगी जमात की वजह से हुआ और इसकी वजह से हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने ठीक से नहीं किया. भाई सबके लिए एक नई चीज थी. तबलीगी जमात ने अपना जरूर वो जो प्रोग्राम उन्होंने होल्ड किया वो गलत था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों के पास थी कि वो ऐसा होने वाला है. दे ऑलवेज फॉलो प्रोटोकॉल. बट सारे केसेस तो तबलीगी जमात के नहीं, और कोई खुद क्यों अपने आप को इन्फेक्ट करना चाहेगा. सेकेंडली, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं. यस, दे डिड वेस्ट टाइम. आई थिंक दे डिड वेस्ट टाइम. दे 2 months वेंट इनटू डोनाल्ड ट्रम्प का मीटिंग, फिर मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट का प्रॉब्लम, ये वो सब. मगर वो सब कुछ उनके लिए भी नया है. सो गलतियां अगर हुई है तो वी मस्ट फॉरगिव दोज एंड सी अब आगे क्या हो रहा है. इट्स लाइक दैट. True, absolutely. Now, Biscuit Showtime viewers, we have got Kanika ma'am here who has been very active not only socially in real life but also on her Instagram, YouTube, and Facebook page. So if you want to follow her, go on to @Kunika Sadanan. You will get a lot of updates which are pretty instant, even about the episode that she spoke about, how she was taken care as a civilian. It was first hand, so it is very interesting. Do follow her on the channel. Now, as much as we are keen to ask you questions, I think we've got a lot of Biskiners on Biscuit Showtime wanting to ask you questions. So maybe Okay, we'll before just that, absolutely. I would like to wish everybody from Bisc, It's Showtime, and everybody else a very, very, क्या कहते हैं उसको, रमजान करीम की शुभकामनाएं आप सबको. और अल्लाह करे ये रमजान आपके लिए आसान हो, अच्छे से गुजर जाए, ब्लिसफुली गुजर जाए, और अल्लाह से दुआ करिए कि ये पूरी दुनिया से इस बीमारी को, इससे निजात दे दे हम सबको. बस. That is very sweet of you, ma'am. Thank you. Allah की दुआ ये कबूल हो. So thank you so much. Let's see what our viewers have to say. We've got Musa Amir Khan saying hi, Kunika ji. Hi. Okay, there's someone Veer Pratap. Veer Pratap, yes. Could you please take Your my name is Kunal. Your name is Kunal. Why is your name Veer Pratap? Okay, Kunal. Musa Amir Khan साहब, रमजान मुबारक आपको भी.
आप कहाँ से हैं? क्योंकि वहाँ गर्मी हो रही होगी जहाँ पे आप हैं क्या? आर यू इन अ हॉट कंट्री? सुनीका जी किसी ने कुछ बोला, पता नहीं, तो चला गया। Yeah, I'll get it ready for you, ma'am. ये भी तो आपके जीवन का नया अनुभव है. Hi from Nani Anil, how are you? There you go. वीर प्रताप जी, थैंक यू. आप मेरे फैन है. जानकी कंसारा, हाय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. Did you read that? Deepak, could you manage to read that? Yes, so we've got from Rahim Khan saying it's a new experience. I've got a message from Rahim Khan saying it is a new experience. तबलीग का मामला, लोग अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए उछाल रहे हैं. सरकार जनवरी में सोचती जाती है कि माहौल आज नहीं आता. अगर if government would have thought about it, देखिए, अभी इस वक्त किसी के ऊपर इल्जाम थोपने का कोई फायदा नहीं है. हम आगे बढ़ चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं. जिन्होंने गलतियां की सबको पता है, और क्यों गलती हुई सबको पता है. लेकिन नाउ वी शुड लुक फॉरवर्ड. लेट्स लुक फॉरवर्ड. थैंक यू वीर प्रताप जी, आपको गुमराह अच्छी लगी. मूसा साहब, मैं ठीक हूँ एकदम. दीपक बेरानी, वेलकम टू दिस लाइव. I'm the guest. Deepa is the host here in this live. So welcome to Deepa's live. Thank you for getting your fans involved here. Okay, we've got a message from Gohil Anish saying, "Ma'am, you're one of the best personality that I know who gets involved with dealing in day-to-day issues and responds to all fans and treats them like family." Of course, भाई अगर आप लोग नहीं होते तो हम नहीं. आप हैं तो हम हैं, आपका प्यार है तो हम हैं. और ये बात मैं कभी नहीं भूलती. कब आपको हम स्क्रीन पे कब देखेंगे, मैं भी कोशिश करूँ कि कोई अच्छा काम मिले, कोई अच्छा रोल आए. देखिए, रोज एक आध सीन वाले रोज आते हैं, तो मुझे लगता है इस उम्र में और इतना सब कुछ आप सबका प्यार पाने के बाद मुझे थोड़ा सा सोच समझ के काम करना चाहिए. अब एक फिल्म आ रही है, लेट्स सी कब रिलीज हो. अभी सिस्टम तो बहुत गड़बड़ है, तो लोग थिएटर में आने वाले नहीं है. तो फिल्म का नाम है तैश. लेट मी सी व्हेन इट गेट्स रिलीज. आप लोग सबको खबर मिलेगी. मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग जाइए, फॉलो कीजिए, मैं अपडेट्स देती रहती हूँ. Web series. She's very active. She's absolutely very active. You'll instantly get to know what latest is going to come up, and she also shares about any distress helpline that can help our civilians in the situation of coronavirus. So, ma'am, I had a question. Which has been your favorite part, or which movie or your television series has been your favorite till date? See, that's a very tough question. If you ask me which is my favorite, every film, every role I've done has given me something new to learn, some new, so I can't say which is my favorite, but I've enjoyed working with a lot of directors. Suraj Barjatia, Abbas Mastan, Mahesh Bhatt, there's so many of them. Abhi recently, Bijoy Nambiar, it was like a totally different experience working with the young crew, and today's films and the crew are so amazingly talented. 25 साल की बच्चियां जो है, वो क्या टैलेंट है उनमें. I was very happy. मेरी perfect, आपकी favorite movie है गुमराह. I still, it comes every time. It will come in the suggested for in Netflix because I've seen it earlier too. It is, I still remember seeing it and remembering Sridevi, and then you come in Mauritius jail. Oh my God! But I have to thank गुमराह के लिए. I have to thank यश जौहर जी. मुझे वो रोल कभी नहीं मिलता अगर यश जी मुझे नहीं बताते कि कैसे जाके भट्ट साहब के सामने जाके कैसे मैं पेश आऊं, किस तरह से. मतलब I will be sharing that story soon on my I have that एक सफर ऐसा भी. The next episode we will be talking about Gumrah and all. I'm taking my journey every step, तो उसमें it was amazing and कैसे मेहनत की हमने और किस तरह से it was excellent. And yes, Jauhar was a great producer. मुझे ऐसा लगता है कि आज जो करण जौहर जो भी, of course he's a very hard working boy, लेकिन करण जौहर and धर्मा Productions जो भी है, it is thanks to the good karma of Yash Jauhar ji. I think we always look for some entertainment, and any journey like this is always memorable. And आजकल जैसे Netflix है, Amazon है, we are so connected with the things that we missed earlier in life. Yeah. And go and look back to and always remember those episodes.
But having you here on our show on Biscuit Showtime, Kunika ji, has been absolutely fabulous. You are not Thank only an you. actor but a social activist who's been so engaging with the community. For that matter, that today I'm sitting in Melbourne and you're in Mumbai, we're still enchanted by the service that you do to the civilians out there. And I'm sure we're looking forward to more. Guys, don't forget to follow her on her Insta, YouTube, and Facebook page. It's I am underscore Kunika Sadanan. And there will be lots more coming up. Do follow our page to get the updates as soon as you will see it happening. And you take care, Deepa. Good. Please wish your family and everybody and all your friends, everybody, especially those who are celebrating Ramadan. हमारे यहाँ पे it's अक्षय तृतीया. So आप देखिए रिलीजन में भी कितनी सिमिलैरिटी होती है. जब कोई मुस्लिम रिलीजन होता है, फेस्टिवल होता है, तो हिंदुओं में भी कोई फेस्टिवल ऐसा होता है. सो इट्स एक्चुअली भगवान ने हम लोगों को अलग नहीं बनाया, हम लोग सबने अपने आप को अलग अलग कर दिया है. सो आई विश एवरीबडी ग्रेट रमदान एंड अक्षय तृतीया की भी सबको शुभकामनाएं. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. Yeah, thank you so much, Kunika ji, for your kind message, and we look forward to your updates happening then. So, Biskiners, have a very good Ramadan Mubarak, is what I would say, and do join us again for the next segment in Quarantine May. I'm Deepa Aftani. I'm signing off from here, and thank you once again, Kunika. Take care. Bye.